یسوع مسیح کے پاک اور عظیم نام میں آپ تمام کلام صدق دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور سبسکرائب کرنے کا اور میسیجز کو شیئر کرنے کا، لائک کرنے کا بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ موجودہ حالات اور موجودہ واقعات اور ایک کشمکش جو دنیا میں چل رہی ہے، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے بائبل مقدس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے، کیونکہ ان سارے حالات، ان واقعات کا تعلق ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی آمد ثانی، یعنی خداوند یسوع مسیح کا دوبارہ اس دنیا میں آنا۔ تو دنیا جاننا چاہتی ہے، لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں ہے، ان حالات اور واقعات کو جاننا نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب ہم یہ حالات دیکھیں، یہ واقعات دیکھیں، تو ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کر سکیں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا، وہ دن ہیبت ناک ہوگا، عدالت کا دن ہوگا۔ وہ بیڑوں اور بکریوں کو الگ الگ کرے گا۔ حالات اور واقعات کو اگر جان لیں اور یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے، مثال کے طور پہ کہ ہمیں خداوند کے آنے کا وقت کب ہے، ایسا بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہیں پر وقت اور اس گھڑی کی بابت لکھا ہے، کوئی نہیں جانتا، تو بھی حالات واقعات خداوند نے ضرور بتائیں، اور کہا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے کہہ دیا ہے۔ پہلے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس اس وقت عذر نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں، مجھے علم نہیں، میں جانتا نہیں۔ اس وقت لکھا ہے کسی کے پاس عذر نہیں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا رسول کی انجیل میں فرمایا، اگر میں نہ آتا اور تم سے یہ باتیں یعنی یہ کلام نہ کرتا تو ان کے پاس عذر ہوتا، مگر اب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھیں کھلی رکھیے، کان کھلے رکھیے، حالات اور واقعات پر نظر رکھیے، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد خداوند سے پوچھنے لگے، خداوند تیرے آنے کا وقت کیا ہوگا، اور یہ ہمیں تو بتا۔ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں کچھ علامات بتائی ہیں، کچھ نشانات، سائنز بتائے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک پر میں غور کروں گا جو ہمیں بڑے واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ لوکا رسول کی انجیل میں سے میں خدا کے کلام کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ 21واں باب اور 7ویں آیت۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، پھر یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہوا ہے؟ اس نے کہا، خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے۔ کس سے پہلے؟ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے یہ باتیں ہوں گی، یہ واقعات ہوں گے، پر خداوند نے اپنے لوگوں سے کہا تم ہرگز گھبرا نہ جانا، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ خداوند نے ہمیں بتا دیا، بلکہ آپ کے دل شادمانی سے بھر جائیں، آپ کے دل خوشی سے بھر جائیں۔ لیکن یہ دل تو اسی کا خوشی سے بھرے گا جو خداوند میں ہے، جو خداوند میں زندگی بسر کر رہا ہے، وگرنہ گناہگار اور خداوند سے دور زندگی بسر کرنے والے کے لیے تو کیا خوشی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو عدالت کا دن ہوگا، اس دن حساب کتاب کا دن ہوگا، اور وہ جو برے لوگ جو کلام پر نہیں چلتے، جنہوں نے ابھی تک خداوند کو اپنا نجات دہندہ نہیں قبول کیا، ان کے لیے تو یہ حکم آئے گا، انہیں وہاں پھینکو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ آج ہمارے پاس جو یہ وقت ہے نا، یہ ایسا نہیں کہ خداوند دیر کر رہا ہے یا خداوند نے آنا ہی نہیں ہے، حالات اس طرح سے جا رہے ہیں، بس یہ باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مہلت ہے، یہ خداوند ہمیں مہلت دیتا ہے کہ جب بھی خداوند کچھ کرتا ہے اس سے پہلے مہلت ضرور دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ طوفان نوح کے آنے سے پہلے مہلت ضرور دی تھی۔ 120 سال تک راستہ بازی کی منادی ہوتی رہی، پر لوگ اس کشتی کی طرف نہ بڑھے اور وہ ایمان نہ لائے۔ پھر سدوم اور عمورہ پر بھی
आग नाजिल करने से पहले खुदा ने अपने बंदा को आगाह किया था, और उस शहर के बदकारी बहुत बढ़ चुकी थी। सो बदकार, गुनाहगार, गुनौने काम करने वाला, शराबी, कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सो 10वीं आयत पढ़ता हूं। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। इसी एक बात पर आज हम खुदा के कलाम में से देख रहे हैं, कलाम में से गौर कर रहे हैं। सो कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, ये अहम निशानी है। लड़ाइयाँ मुल्कों की होती रही हैं और एक मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करता रहा है, पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत, यानी हर मुल्क अपनी ताकत दिखाने के कोशिश में लगा होगा, अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। इकोनॉमी वॉर हो रही होगी और जंगें, हथियारों की जंगें और लड़ाइयाँ और ख़तरनाक हैबतनाक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। ऐसे ऐसे बम जो डिसॉल्व कर दें, ऐसे बम जो फेंके जाएं, ऑक्सीजन सक कर लेते हैं, और वही लोग जब ऑक्सीजन नहीं मिलती ढेर होना शुरू हो जाते हैं। सो मौजूदा हालात में मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, अगर आप खबरों से वाकिफ़ हैं, आप खबरें देख रहे हैं कि चंद माह से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक जंग चल रही है और इसराइल वहाँ पर अटैक कर रहा है, वहाँ से भी अटैक होते हैं और ये रुकने का नाम नहीं दे रहा, ये थमने की तरफ बात जा ही नहीं रही है, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्क भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। बहुत सारे मुल्क लड़ाई नहीं चाहते होंगे, वो नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो, लेकिन उसके बावजूद भी हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, हालात इस तरह बढ़ रहे हैं कि उनको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। सो ये जंग अब फ़लस्तीन और इसराइल तक में ये महदूद नहीं रही है। फिर ये लुबनान से हिज़्बुल्लाह एक तंजीम है, वहाँ से जो है वो इसराइल पर अटैक शुरू हो गए और इसराइल अब लुबनान पर अटैक कर रहा है। इसी तरह से यमन से जो है वो मिसाइल जो है वो बरसाए जा रहे हैं। फिर वहाँ से कुछ जो कमर्शियल जहाज़ गुजरते थे, जो रसल लेकर आते और जाते थे उस रूट से, और वहाँ पर यमन से कुछ लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, जिसके जवाब के अंदर वहाँ से 2-3 दिन से खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका और बरतानिया और कुछ और मुल्क हैं जिन्होंने यमन पर अटैक कर दिया है। ये मौजूदा है, 2 साल गुजरने को आए हैं कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग पहले से चल रही है, जो अब बड़ी तेज़ी पकड़ रही है, बड़ी तेज़ी फैल रही है, और हर जगह किसी न किसी मुल्क का अपना एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और कोई किसी के पीछे खड़ा है, कोई किसी, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये पूरी दुनिया एक इन्वॉल्वमेंट की तरफ बढ़ रही है, और ख़तरा जो है वो ये है कि तीसरी आलमी जंग जो है वो ना छिड़ जाए। और अभी चंद दिन पहले ही खबरों में आपने सुना और अगर आपने देखा तो नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया के ऊपर भी हमला किया और एक साथ तो 200 के करीब जो है वो गोले बरसाए, और वहाँ से भी ज़ाहिर बात है अगर कोई करेगा तो हर मुल्क के पास हथियार है, वहाँ भी रिस्पॉन्स होगा। मेरा जो मकसद है इस वीडियो का, ये आप तक मैसेज पहुँचाना कि ये हालात हाज़रा जो कुछ हो रहा है, ये मौजूदा जंगें हमें यहाँ नज़र आ रही हैं कि खुदावंद ने कहा कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत। चाइना अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमी उसकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, हथियारों में स्ट्रांग हो चुका है और वो खला में अपने मिशन भेज रहा है, रशिया भेज रहा है, इंडिया अपने खला में मिशन भेज रहा है, जंग वहाँ से चल रही है। और ये जो अटैक हुआ है, अब हो सकता है कि जो हालात, जो खबरें देखी जा रही और सुनी जा रही हैं, वहाँ पर ईरान भी शामिल हो सकता है और ये दुनिया के दूसरे मुल्क भी अगर शामिल हो जाते हैं तो यहाँ आसमान से आग जो नाजल होती है ना, तो ये मिसाइल ही हैं जो आग बरसा रहे हैं, जहाज़ आग बरसा रहे हैं, आग के गोले और ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं। अगर एटम बम खुदा ना करे ऐसा हो और उसका इस्तेमाल हो तो उसकी नुकसानात आप दे सकते हैं कि जापान के ऊपर जब ये
बम गिराए गए थे तो वहाँ पर फसलें पैदा नहीं होती, ज़मीन बर्बाद हो जाती है, ज़मीन तबाह हो जाती है। तो मुकाशवा की किताब में हमें ऐसे इशारे मिलते हैं, ज़मीन जल गई, ज़मीन बर्बाद हो गई, ज़मीन तबाह हो गई, आसमान से आग नाजिल हुई। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एक सिमत पर लेकर जा रही हैं, और वो ये है कि ये शागिर्दों ने पूछा था होगा कब, तेरे आने का वक्त क्या होगा। तो खुदावंद ने यहाँ से शुरू किया 10वीं आयत में, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और वो हमें होता हुआ नजर आता है। हासिल कलाम क्या है, इन सारी बातों के पीछे मकसद क्या है। ये कोई न्यूज़ का चैनल नहीं है, ना मैं आपको कोई खबरें सुना रहा हूँ। इन खबरों को सामने रखते हुए, हालात और वाक़यात को उन खबरों के तनाजुर में आपकी खिदमत में खुदा के कलाम में से ये रुख पेश कर रहा हूँ, रहनुमाई पेश कर रहा हूँ कि आओ हम अपने खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। ये ऐसा नहीं है कि ये होगा नहीं, खुदावंद नहीं आएगा, ये अटल है। लेकिन जो वक्त ठहराया हुआ है, जो वक्त ठहराया हुआ है, उससे पहले वो नहीं आएगा। जो वक्त ठहरा हुआ है, आज खुदावंद हमें मौका दे रहा है, खुदावंद मोहलत दे रहा है कि आज तक अगर किसी ने तौबा नहीं की तो आज उसके पास मौका है, वो तौबा करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करके इसमें शामिल हो सकता है। और ये महदूद नहीं, इसमें हर कौम, हर कबीला, हर मज़हब, हर अहले ज़ुबान में से इसमें लोग शामिल हो सकते हैं। और ये नज़र आ रहा है, दुनिया के मुल्कों में देखिए खुशखबरी फैल रही है, और लोग रोज़ बरोज़ बड़ी बड़ी तादाद में यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर रहे हैं। और यकीनन सारी ज़िंदगी भी अगर किसी की गुजर जाए और आखिरी वक्त में भी कबूल करेगा, यीशु को निजात दहिंदा कबूल करेगा, खुदावंद उसे गले लगाएगा। हमारे सामने एक बहुत बड़ा सबूत मौजूद है, और वो उस डाकू का है जिसका नाम ही जो है वो डाकू का लेकर पुकारा जाता है, जिससे डाकू कहकर पुकारा जाता है। और ज़िंदगी में कोई शायद उसने अच्छा काम किया हो, लेकिन आखिरी वक्त में उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया और उसे अपनी ज़िंदगी का मालिक और आका मानकर कहा, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए। हालांकि वो देख रहा है कि उसी सज़ा में है, खुद भी लटका हुआ है, यीशु भी लटका हुआ है, पर उस पर यह भेद खुल गया, उस पर यह भेद खुल गया। जो जानना चाहते हैं, जो पहचानना चाहते हैं, उन पर यह भेद खुल जाता है। वरना इन लोगों को इंसान ही नज़र आता है, लेकिन जिन पर यह भेद खुल जाए, जो उसे जानना चाहें, उन्हें नज़र आता है यही मालिक है, यही खालिक है, यही मुनज्जी है, यही निजात देंदा है, यही गुनाहों से माफ़ी देने वाला है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद आप सबको अपनी आमद के लिए तैयार रहने का फजल अता करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।